اگر آج بھی خالی ہاتھ لوٹے تو بہتر ہوگا کہ کبھی گھر واپس مت آنا۔ سبا کے یہ الفاظ ہارون کے سینے میں تیر کی طرح گہرائی تک اتر گئے تھے۔ سبا اس کی بیوی تھی، ایک ایسی عورت جو غربت اور تنگ دستی سے بہت پریشان ہو چکی تھی۔ ہارون ایک عام سا ماہی گیر تھا جو کئی ہفتوں سے سمندر سے ایک بھی مچھلی نہیں پکڑ پا رہا تھا۔ گھر کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مٹی کا چولہا اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور لکڑی کی ان کی پرانی جھوپڑی نما گھر تیز ہواؤں میں کانپ رہا تھا۔ سبا کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ شاید اس نے غلط آدمی سے شادی کر لی ہے۔ وہ اندر ہی اندر اسی سوچ میں ڈوبی تھی۔ اب اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسی صبح ہارون اپنی پرانی کشتی لے کر سمندر کی طرف نکل پڑا۔ سمندر سناٹے میں تھا، مگر اس کے دل میں ایک بڑا طوفان تھا۔ اس کی کشتی دھیرے دھیرے پانی میں آگے بڑھ رہی تھی اور ہر لہر کے ساتھ اس کی امیدیں ڈوبتی اور پھر ابھرتی رہیں۔ دوسری طرف سبا بھی گھر سے نکل کر سمندر کے کنارے بیٹھی تھی۔ وہ سمندر کی لہروں کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ میری قسمت کیسی ہے، نہ پیسہ نہ سکون، اور اب صبر بھی جواب دینے لگا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر آج بھی اس کا شوہر خالی ہاتھ واپس آیا تو وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اسے دور سمندر میں ایک کشتی نظر آئی جو آہستہ آہستہ کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کشتی میں کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر ہارون تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جال تھا، لیکن دور سے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس جال میں کچھ ہے یا نہیں۔ جیسے ہی ہارون نے اپنی کشتی ساحل پر کھینچی، سبا کی نظر اس کی طرف اٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی کہ شاید آج کوئی مچھلی پکڑ کر لے آیا ہو، لیکن جیسے ہی اس کی نظر خالی جال پر پڑی، اس کا چہرہ اور بھی سخت ہو گیا۔ کشتی کی حالت بھی اس کی قسمت جیسی لگ رہی تھی۔ سوکھا اور تھکا ہوا ہارون کے چہرے کی مایوسی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ آج بھی سمندر نے اسے کچھ نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور وہ سبا کی طرف دیکھ بھی نہ سکا۔ چپ چاپ قدم بڑھاتا ہوا اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑا اور اندر داخل ہو گیا۔ سبا چپ چاپ دیکھتی رہی اور پھر تمل تماتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سخت لہجے میں کہا، پوری بستی کے مچھیروں کے جال آج بھی مچھلیوں سے بھرے ہوئے تھے اور تم ہو جیسے سمندر نے تم سے دشمنی پال لی ہو۔ کئی دن گزر گئے اور تم ایک بھی مچھلی نہیں پکڑ سکے۔ ہارون جو گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر مایوس بیٹھا تھا، وہ دھیمی آواز میں بولا، میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے سبا، لیکن شاید میری قسمت ہی سو رہی ہے، پر یقین مانو کل سب کچھ بدل جائے گا۔ سبا نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کڑوے لہجے میں کہا، اگر کل بھی تمہارا جال خالی رہا تو سوچ لو کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہارا گھر چھوڑ کر اپنے مائکے چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں ہارون سے تھوڑا دور جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ہارون نے آہستہ سے کہا، سبا، مجھے یقین ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ سبا خاموش رہی۔ ہارون نے پھر کہا، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، کچھ کھانے کو ملے گا؟ سبا غصے میں پلٹ کر بولی، کہاں سے لاؤں کھانا؟ کچھ لاتے تو میں بھی بنا دیتی، میں بھی تمہاری طرح بھوکی بیٹھی ہوں، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ یا تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں یا سمندر میں کود جاؤں۔ ہارون نے سبا کی کڑوی باتیں سنی۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اب رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ سمندر کی ہوا تیز تھی، جیسے ہر تیز ہوا کا جھونکا اس کی غربت کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس کی جھوپڑی کی کھڑکیاں ایسے چرچرا رہی تھیں جیسے ہوا بھی اسے ٹھکرا رہی ہو۔ جیسے ہی ہارون گھر سے باہر نکلا، سبا نے تیزی سے مٹی کے برتن کے اوپر سے ڈھکن ہٹایا، جس میں وہ کچھ روٹیاں اور تھوڑا سا بچا ہوا سالن چھپا کر رکھے بیٹھی تھی۔ بغیر وقت ضائع کیے سبا نے اسے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں ہارون واپس نہ آ جائے۔ ہارون آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے پرانے دوست شہراز کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر شہراز باہر آیا۔ ہارون نے دھیمی آواز میں کہا کہ بھائی، آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہو تو۔ شہراز جو ہارون کو بدقسمت سمجھتا تھا، اس کی بات کو کاٹتے ہوئے فوراً بولا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور اگلی بار یہاں کا رخ بھی مت کرنا۔ ہارون کی نظر اس کے گھر میں رکھی ہوئی تازہ مچھلیوں پر پڑی جو اس نے آج دن میں پکڑی تھی اور جنہیں وہ اگلی صبح بازار میں بیچنے والا تھا۔ ہارون نے ان مچھلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بھائی، اللہ نے تجھے بہت ساری مچھلیاں دی ہیں، کیا ان میں سے مجھے ایک مچھلی عارضی طور پر نہیں دے سکتے؟ میں تم سے قرض نہیں مانگ رہا، جب میری قسمت جاگے گی تو میں تمہیں ایک کے بدلے 2 مچھلیاں واپس دے دوں گا۔ شہراز ہنس پڑا، کہا، تم مجھے 2 مچھلیاں دو گے؟ جس جال سے تم ہفتوں تک ایک مچھلی بھی نہیں پکڑ سکے، تم مجھے 2 مچھلیاں کیسے دو گے؟ یہاں سے چلے جاؤ۔ ہارون کی نظر نیچی ہو گئی۔ اس نے صبر کا گھونٹ پی کر وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ پھر وہ بستی کے ایک اور گھر کی طرف گیا، مگر وہاں بھی اسے صرف جھڑکیاں اور طنز ہی ملا۔ ہر دروازہ اس کے لیے بند ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار ہارون تھک ہار کر سمندر کے کنارے بیٹھ گیا۔ ہارون کی آنکھوں میں نمی تھی، سمندر کی لہریں اس کی ٹانگوں سے ٹکرا رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا،
तारे भी उसे आज धुंधले और दूर नजर आ रहे थे। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उसके गालों को गीला कर रहे थे और दिल की गहराई से निकलने वाली पुकार खुदा तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ऐ मालिक, अगर तू चाहे तो मेरी किस्मत बदल सकता है। सबके जाल मछलियों से भर रहे हैं, तो मेरा जाल क्यों खाली रह जाता है? आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? उसके अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता रोने में बदल गए और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर की हिम्मत भी जवाब दे गई। वो वहीं रेत पर बैठा रहा, आंखें बंद, सांस भारी। तभी वहां से गुजरते हुए एक बुजुर्ग की नजर उस पर पड़ी। उनका नाम था आतिफ बाबा। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और हाथ में लठ। वो अक्सर शाम के वक्त समंदर के किनारे टहलने आया करते थे। करीब आकर धीमी आवाज में कहा, बेटा, पानी अभी और बढ़ेगा और यहाँ बैठना खतरे से खाली नहीं है। चलो यहाँ से उठो। लेकिन हारून अपने ख्यालात में इस हद तक खोया हुआ था कि उसने इसकी आवाज ही नहीं सुनी। आतिफ बाबा ने फिर कहा कि बेटा, सब खैरियत तो है ना? लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं सुना। फिर आतिफ बाबा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर तुम परेशान हो और कुछ कहना चाहते हो तो मुझे बताओ। इंसान को हालात से नहीं डरना चाहिए बेटा, तू अकेला नहीं है। हारून ने अपनी नजरें उठाई और अपनी भीगी आंखों के साथ बस एक सवाल किया, कुछ खाने को मिलेगा? आतिफ बाबा ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराए, जैसे उन्हें दुख भी हुआ हो और अपनायत भी। फिर उन्होंने कहा कि अगर बात बस इतनी है तो मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो वापस चले गए। हारून वहीं साहिल पर बैठा रहा, आंखें बंद किए अपने ख्यालात में गुम। थोड़ी देर बाद आतिफ बाबा दोबारा वापस आए। उनके हाथ में एक थाल था जिसमें थोड़ा सा सालन और कुछ रोटियां थी। लो बेटा, इसमें थोड़ा सा खाना है, इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा, उन्होंने कहा। रोटियां देखकर हारून की आंखें फिर भर आईं। उसने कांपते हाथों से वो थाल उठाया और सर झुकाकर उन बुजुर्गों का शुक्रिया अदा किया। बगैर कुछ कहे वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ वापस चल दिया, जैसे उसके दिल में फिर से थोड़ा हौसला जाग उठा हो। जब हारून वो थाल लेकर घर पहुंचा तो मुस्कुराकर सबा से कहा, देखो, कुछ खाने का इंतजाम हो गया। सबा, जो पहले ही अपना पेट भर चुकी थी, चुपचाप रोटियों की तरफ बढ़ी। 3 में से उसने 2 रोटियां अपने लिए निकाल ली और कुछ सालन भी। हारून के हिस्से में 1 रोटी और थोड़ी सी सब्जी बची, मगर हारून ने कुछ नहीं कहा। उसे इसी में सुकून मिला। खाना खत्म करते ही वो बिस्तर पर लेट गया और सो गया, क्योंकि उसने आज फैसला कर लिया था कि सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो उठकर समंदर की तरफ जाएगा, अपनी किस्मत को एक और मौका देने के लिए। अगली सुबह का मंजर कुछ और था। आसमान गुलाबी रंगों से नहाया हुआ था और समंदर की लहरें किनारे से टकराकर कोई अलग ही धुन गा रही थी। यूं लग रहा था जैसे सब कुछ बदलने वाला हो। हारून अपनी पुरानी कश्ती लेकर समंदर की तरफ चल पड़ा। आज वो उस तरफ जा रहा था जहां जाने से वो हमेशा डरता था। समंदर के अंदर का गहरा और खौफनाक इलाका। उसकी किश्ती इस इलाके के लिए नहीं बनी थी, लेकिन आज उसका इरादा मजबूत था। आज उसने खौफ को पीछे छोड़ दिया था, सबा के लिए, इस घर के लिए जिसे वो हमेशा बचाना चाहता था। हारून ने जाल उठाया और समंदर में फेंक दिया। आज उसके दिल में एक ही बात थी कि या तो आज वो मछली पकड़ लेगा। कल रात वाली सबा की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं अपने घर लौट जाऊं या फिर समंदर में डूब जाऊं। अगर कल भी तुम्हारा जाल खाली रहा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा घर छोड़ दूंगी। इन बातों का बोझ उसकी सांसों पर बहुत भारी था। आज वो समंदर से अपने घर खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही दांव पर क्यों न लगानी पड़े। हारून अपने जाल को पानी में फेंककर बेसब्री से किसी हरकत का इंतजार कर रहा था। उसका दिल बार बार यही सोच रहा था कि अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबा वाकई चली जाएगी। ये बातें उसके दिल में इस तरह घर कर गई थीं कि ना उसे समंदर की लहरों से डर लगता था और ना ही मौत का खौफ रह गया था। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था कि किसी भी तरह एक मछली पकड़े। कई घंटे गुजर गए थे, लहरें चमक रही थी, लेकिन हारून का जाल अभी भी वैसा ही पड़ा था, जैसे कोई उसे देख के हंस रहा हो। अब शाम होने लगी थी। हारून की नजर दूर एक कश्ती पर पड़ी। उसे लगा जैसे वो किसी जान पहचान वाले को देख रहा हो। कुछ ही देर में उसकी पहचान हो गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त शहराज था। वही शहराज जिसने पिछली रात घर से तंजिया बातें करते हुए खाली हाथ वापस आना पड़ा था। आज वो दोबारा समंदर में आया था। सुबह वो अपनी मछलियां बेच चुका था और अब फिर शिकार के लिए निकल पड़ा था। उसकी बड़ी और मजबूत कश्ती दूर से ही नजर आ रही थी। वो शानदार लग रही थी। उसके पास शहराज के महंगे जाल, मजबूत हुक और वो सब कुछ था जो एक कामयाब माहीगीर के पास होना चाहिए। जब हारून उसकी कश्ती के करीब से गुजरा तो उसने देखा कि शहराज की कश्ती मछलियों से भरी पड़ी थी और उसके जाल में अभी भी मछलियां फंस रही थीं। शहराज उन्हें एक एक करके बाहर निकाल रहा था और मुस्कुरा रहा था। शायद उसने हारून की मौजूदगी का एहसास कर लिया था। फिर उसने एक बड़ी मछली अपने हाथ में उठाकर दिखाई और जैसे उसकी नजरों में गुरूर था और हारून की आंखों में वही तन्हाई, मायूसी, तड़प और एक ना खत्म होने वाली उम्मीद। शहराज की मछलियों से भरी कश्ती का मंजर देखकर हारून का दिल टूटने लगा। दिल ही दिल में उसने सोच लिया था कि आज भी वो खाली हाथ ही लौटेगा। अब सूरज भी गुरूब होने को था और हारून मायूसी की चादर ओढ़े अपनी पुरानी सी कश्ती को साहिल की तरफ खींच लाया। जब वो अपने घर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसे डर था कि कहीं सबा वाकई उसे छोड़कर न चली गई हो। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और जब उसने देखा कि सबा घर में मौजूद है तो उसकी सांस कुछ धीमी हो गई। और फिर हारून ने धीमी और थकी हुई आवाज़ में कहा, आज मेरी किस्मत जाग गई थी। एक बहुत बड़ी मछली मेरे जाल में फंस गई थी और कश्ती तक लाते लाते वो दोबारा फिसलकर पानी में चली गई। सबा जो चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी थी वो खामोशी से उसकी बातें सुनती रही, लेकिन अब उसकी आंखों में ना कोई उम्मीद थी और ना कोई सवाल। हारून ने पीने के लिए गिलास में पानी भरा और उसे पीने से पहले सबा की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी सबा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, तुम देखना अच्छे दिन जरूर आएंगे। लेकिन हारून को ये नहीं मालूम था कि सबा के दिल में अब उसकी कोई जगह नहीं रही थी। वो अपने फैसले पर कायम था। उसने अपने कपड़े और जरूरी सामान सब कुछ पुराने संदूक में रख लिया था। वो बस सुबह का सूरज निकलने का इंतजार कर रही थी ताकि सुबह होते ही अपने मायके वापस चली जाए। हारून अब भी इस हकीकत से बेखबर था। उसे लग रहा था कि चाहे वो मछली पकड़ ना पाया हो, लेकिन सबा का साथ अब भी उसके साथ है। यही बात उसे तसल्ली देती थी। अगली सुबह जब एक बार फिर आसमान हल्का होने लगा, हारून फिर उसी जगह पर गया। समंदर का वही किनारा जहां बुजुर्ग ने उसे खाना दिया था, मगर आज वहां बिल्कुल सन्नाटा था। ना वहां बुजुर्ग थे और ना कोई निशान। हारून इधर उधर देखने लगा। हारून की नजरें बार बार साहिल के उस कोने पर जमी रहीं जहां कल किसी ने उसका पेट भरा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर आज बाबा ना आए तो मैं सुबह के लिए खाना कैसे ले जाऊंगा। वक्त गुजरता गया और रात का अंधेरा छाने लगा। आसमान पर तारे टिमटिमाने लगे और सर्द हवा चलने लगी। अब इस ठंडे साहिल पर बैठकर इंतजार करना था अब बस एक बेमानी उम्मीद बनकर रह गया था, क्योंकि आज बूढ़ा नहीं आने वाला था। हारून वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ा, मगर दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद की चमक बाकी थी। आज की रात हारून की उन रातों में से एक थी जो शायद कभी भूली ना जा सके। जब हारून घर लौटा तो सबा सो चुकी थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं रही। हारून एक कोने में बैठा था, भीगी आंखों से उन बर्तनों को देख रहा था जिन्हें कभी सबा बड़े प्यार से सजाती थी। उम्मीद से उसने बर्तनों को छूना शुरू किया कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसकी नज़र एक प्लेट पर पड़ी जो किसी बर्तन से ढकी हुई थी। उसे खोलते ही हारून की आंखें चमक आ गई थी। उसमें थोड़े से पके हुए चावल रखे थे, जैसे उसकी रूह जाग उठी हो। खुशी से वो बोल पड़ा, सबा देखो चावल। ये कहते ही उसकी जबान रुक गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये चावल उसकी बीवी ने छुप कर रखे थे। अब सवाल ये था कि घर में कुछ था ही नहीं तो ये चावल कहाँ से आए। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया कि तकरीबन 1 महीने पहले जब किस्मत ने उसका साथ दिया था और वो एक मछली पकड़ लाया था, उसने वही बेचकर चावल लिए थे। उसके बाद तो जैसे किस्मत ने उस पर दरवाज़ा ही बंद कर दिया था और फिर घर में कभी चावल नहीं बने। अब उसे समझ आ गई थी कि यही चावल थे जो सबा ने अपने लिए बचा रखे थे। हारून को इस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक सुकून महसूस हुआ कि कम से कम सबा आज भूखी नहीं सोई। फिर उसने वो चावल उठाए और आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा। यही चावल थे जिन्हें सबा ने छुपाकर अपने लिए रखा था। अब यही हारून का सहारा बने। अक्सर समंदर का पानी उसके घर तक पहुंच जाता था। आज भी पानी की लहरें उसके घर के करीब तक आ गई थी और हवा में सर्दी बढ़ गई थी, जैसे सर्दियां बगैर बताए आ गई हों। हारून ने कांपते हुए एक पुरानी सी चादर ओढ़ी और खिड़की के पास खड़ा हो गया। देर हो गई थी। खिड़की के पार समंदर की लहरें एक के बाद एक आ रही थीं। वो चुपचाप उन्हें सुनता रहा और सोचता रहा कि आज सुबह से भूखा था और सबा ने उससे वो चावल भी छुपा लिए थे, लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं हो रही थी। शायद मोहब्बत का यही रंग होता है। इन्हीं सोचों में वो कब नींद में जा घिना, खुद भी पता न चला। सुबह का सूरज निकल चुका था। आज कोई आम सुबह नहीं थी। आज का दिन वो मोड़ लेकर आया था जो हारून की किस्मत बदल देने वाला था, और शायद उन सब के लिए एक सबक भी, जो मुश्किल वक्त में अपने शौहरों का साथ छोड़ देती है। ये वही सुबह थी जो पर्दा उठाने वाली थी उस सच्चाई का जिसे हारून आज तक नहीं देख पाया था। सूरज की पहली किरण के साथ हारून उठ खड़ा हुआ। उसने सोई हुई सबा पर एक नजर डाली, शायद जिंदगी में आखिरी बार। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सबा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से जा रही है। हारून चुपके से घर से निकल गया और समंदर के किनारे अपनी पुरानी सी किश्ती के पास पहुंचा, जो उसकी मेहनत, उम्मीद और तन्हाई की गवाह थी। हारून कुछ नया करने वाला था। वो बहुत दूर जाने का सोच रहा था, वहां तक जहां माहीगीर जाने से डरते हैं। हारून अपनी किश्ती को गौर से देख रही थी कि क्या वो उसे सह पाएगी। उधर घर में सबा भी जाग चुकी थी, लेकिन अब वो उस घर की नहीं रही थी। उसने अपना लकड़ी का वो संदूक उठाया और घर का दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गई और अपने मायके की तरफ चल पड़ी। आज वो अपना घर, अपना शौहर और सब कुछ छोड़ रही थी।
इधर हारून ने अपनी किश्ती समंदर में उतारी और गहराइयों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो दूर तक निकल आया तो उसने अपने जाल को समंदर की लहरों में डाल दिया। हाथों में जाल की डोर थी और आंखों में आखिरी उम्मीद। हर बार की तरह वो चुपचाप इंतजार करने लगा, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जाल हिलने लगा, रस्सी भारी होती जा रही थी। हारून ने आहिस्ता आहिस्ता रस्सी अपनी तरफ खींची। जैसे ही उसने जाल को किश्ती के ऊपर खींचा तो हैरत से उसकी आंखें खुल गईं। जाल में एक बड़ी मछली फंस गई थी और साथ ही उसके छोटे छोटे बच्चे भी। पहली बार उसने मछली की आंखों में वो गहराई देखी, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहती हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जाल में तड़पते हुए उसके छोटे बच्चे थे। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाचार थे। हारून का दिल पसीज गया। उसने जाल खोला और एक एक करके सारे बच्चे समंदर में छोड़ दिए। बच्चे पानी में आते ही अपनी माँ के चारों तरफ तैरने लगे, जैसे उन्हें जिंदगी दोबारा मिल गई हो। लेकिन उनकी माँ अभी भी उनसे दूर थी। हारून अब सब कुछ समझ चुका था। उस मछली की आंखों में उसकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी, लेकिन हकीकत जानने के बावजूद वो मजबूर था। आज वो खाली हाथ घर वापस नहीं जाना चाहता था। उसके घर में पहले ही हालात खराब थे और सबा भी अब कुछ और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने दिल पर पत्थर रख लिया। बड़ी मछली अब किश्ती में थी, बुरी तरह तड़प रही थी। मछली के बच्चे किश्ती के इतने करीब पानी में तैर रहे थे, जैसे मछलियों की दुनिया ही खत्म हो गई हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे वो अपनी माँ को वापस मांग रहे हो। हारून उन्हें देख रहा था और अंदर से टूटता जा रहा था, मगर दिल में सोच रहा था कि अगर आज इसे छोड़ दिया तो कल शायद मैं भी भूख से मर जाऊंगा। आज जो जाल में है वही मेरी किस्मत के लिए काफी है। वो मछली काफी बड़ी थी, इतनी बड़ी कि अगर बेच दी जाए तो 1 माह आराम से गुजारा हो सकता था। हारून ने एक बार फिर मछली की तरफ देखा और दूसरी तरफ उसके बच्चे किश्ती के करीब पानी में तैर रहे थे, जैसे वो अपनी माँ की रिहाई के लिए दुआ मांग रहे हों। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अगले लम्हे उसने मछली को उठाया और समंदर में फेंक दिया। पानी में गिरते ही मछली तेजी से पानी के ऊपर तैरने लगी और हारून की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि जा, तुझे तड़पते हुए नहीं देख सकता, तू अपने बच्चों के पास चली जा। तब हारून को एहसास हुआ कि वो सिर्फ माहीगीर नहीं बल्कि एक इंसान भी है जिसके सीने में दिल धड़क रहा है। फिर मछली समंदर की लहरों में गायब हो गई। हारून चुपचाप अपनी कश्ती में वहीं बैठा रहा। उसकी सांसें तेज थीं और दिल किसी पछतावे में डूबा हुआ था। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर उसने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, तो क्या हुआ, कम से कम मछली और उसके बच्चे जिंदा हैं, वो एक साथ हैं और खुश हैं। उसकी भूख, थकान और तन्हाई मिलकर उसे किसी अनजानी खामोशी में डुबो रही थी। हारून ने आंखें खोलकर पानी की तरफ देखा। पानी में वही बड़ी मछली थी। उसके मुंह में एक सुनहरी टुकड़ा था। हारून उसे देखकर चौंक गया। सोना। फिर मछली ने सोने का वो टुकड़ा हारून की तरफ बढ़ाया। हारून हैरान होकर वो सोने का टुकड़ा अपने हाथ में उठा लिया और मछली समंदर की लहरों के साथ पानी में गायब हो गई। हारून कुछ देर के लिए पत्थर का बुत बन गया। उसने अपनी हथेली में रखे उस चमकते हुए टुकड़े को देखा। अब उसे मछली पकड़ने की जरूरत नहीं थी। वो उस चमकते हुए टुकड़े से अपने घर का कई हफ्तों का राशन और घर की जरूरियात पूरी कर सकता था। वो खुश होकर कश्ती को तेजी से अपने घर की तरफ मुड़ा और अपने घर पहुंच गया। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। दीवारें खामोश थी, कमरे ठंडे पड़े थे। उसने सबा को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसे वही कड़वे अल्फाज याद आए जो सबा ने कहे थे कि अगर कल भी तुम मछली ना पकड़ पाए तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। हारून की सांस फंस गई। उसके कदम लड़खड़ाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा, मगर दिल में खौफ और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जल्दी से घर से बाहर निकला, इधर उधर भागा, लेकिन सबा का कोई पता नहीं मिला। उसका माथा पसीने से भीग गया। हारून ने वो सोने का टुकड़ा लेकर अपने करीबी बाजार की तरफ चला और उसने सोने का वो टुकड़ा एक सुनार को बेच दिया। जो भी पैसे उसे मिले लेकर सबसे पहले सबा के घर गया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो सबा के घर पहुंचा और कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद सबा का बाप घर से बाहर निकला और हारून को देखते ही गुस्से में बोला, तुम्हें क्या चाहिए? हारून ने नरम आवाज में पूछा, क्या सबा आपके पास है? हाँ, सबा यहीं है और उसने साफ कह दिया है कि वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती और आइंदा इस घर का दरवाजा कभी मत खटखटाना। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। हारून को ऐसा लगा जैसे दिल के बीच में किसी ने छुरा घोंप दिया हो।
दिन गुजरते गए। हारून ने कई कोशिशें की, कई रास्ते तलाश किए, लेकिन सबा से मिलना अब नामुमकिन लगने लगा था। शायद अब उसकी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर हारून उसी समंदर के किनारे बैठ गया। अब उसके पास पैसे थे, लेकिन सबा नहीं थी। उसे अब समझ आ रही थी कि शायद सबा कभी उसकी ही नहीं थी। वो उसके साथ रहती तो भी उसके साथ नहीं थी। जब उसकी जेब खाली थी तो वो छोड़कर चली गई। चाहे इंसान की हालत कैसी भी हो, लेकिन जो छोड़ने वाले होते हैं वो आखिरकार छोड़ ही जाते हैं। जो सच्चे होते हैं वो कभी साथ नहीं छोड़ते और ना ही हालात को देखकर बदलते हैं। हालात चाहे जैसे भी हो, जिंदगी में अच्छे और बुरे वक्त आते रहते हैं, लेकिन यही बुरा वक्त असल आईना होता है। यही वक्त हमें दिखाता है कि कौन हमारे अपने हैं और कौन नहीं। जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दें वो कभी हमारे नहीं थे, और जो मुश्किल वक्त में भी हमारा हाथ थामे रहें, बस वही हमारे अपने होते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।